प्रेजेंटेशन के लिए जो आप प्रपोजल बनाए सर वो कितने रिसर्च पेपर 10 तक बस? मैं आज आपको सैंपल दिखाता हूँ। Okay, today we have to cover the commercialization and patenting aspects of the lecture. In the previous lecture, we covered related to various writing skills uh, or the mistakes which generally people do while writing. So we discussed those and completed that content. Uh, there is one more thing which is related to the plagiarism that I'll also try to cover today, and along with that, we'll do the patenting, etc. So before I proceed forward, let me show you a sample presentation which you need to give for your proposal document, right? So let me share that and then we can move forward. Okay. So I hope now it's visible to everybody and can just share. Okay, so everyone has to give a presentation to clear the subject, and that is related to your proposal presentation. Proposal presentation has to cover certain things, which I'll now just show you. So this is the title slide, which everybody has to make, showing the title of your work along with the supervisor name and your name. Okay. Followed by certain things. This is the sequence which you should follow for the presentation. Should not be more than a 10 minutes presentation, but it should cover all these things. It must be having एक slide introduction पे होनी चाहिए, then few slides on literature review. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंटेशन प्राइमरली लिटरेचर रिव्यू के लिए ही होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस प्रपोजल प्रेजेंटेशन का या प्रपोजल डॉक्यूमेंट का वो लिटरेचर रिव्यू होता है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। Followed by the gap analysis and subsequently problem statement, research questions and objectives, then the proposed method, followed by timelines and references. So there should be one slide which should be covering the introduction. Introduction के अंदर there are three punchlines. One is the introduction of the problem, significance of the problem, and then the introduction of your solution. So उसको suitably आपने एक slide के अंदर cover करना है, followed by the literature review. लिटरेचर रिव्यू जो है, अभी आपने सवाल किया कितने, तो लिटरेचर रिव्यू इस प्रेजेंटेशन में कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स आपको वन बाय वन डिस्कस करने चाहिए विद इट्स मेथड, कि ये पेपर है और ये उसका मेथड है। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इसमें क्या मेथड फॉलो किया गया है पेपर में, कौन सा डेटाबेस यूज किया गया है और कौन से प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। शुड नॉट बी अ रिव्यू पेपर। I repeat, should not be a review paper. Review papers are for your own knowledge and maybe आप उसको ले सकते हैं, पढ़ें, बिल्कुल मना नहीं किया, but in the presentation it should be all those papers which are solution based problems, solution based papers, and they are giving some methodology to solve the issue which you are trying to address. So one paper, then you it's followed by the second paper. आप पेपर का टाइटल जो है वो फुटनोट में डाल सकते हैं या आप उसको मेन का टेक्स्ट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, पूरा फुल रेफरेंस हो। तो अकॉर्डिंगली दोनों पेपर्स को एक्सप्लेन करें, तीसरे को एक्सप्लेन करें, चौथे को एक्सप्लेन करें, पांचवे को एक्सप्लेन करें। एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स आपको वन बाय वन लिटरेचर रिव्यू में डिस्कस करने चाहिए, फॉलोड बाय मैट्रिक्स मेड इन दी सिक्स स्लाइड, जिसमें आप और 5 एक पेपर जो है वो एक मैट्रिक्स के अंदर उनके ड्रॉबैक्स और उनके प्रॉज एंड कॉन्स आप उसमें शो कर दें जो कि रिलेटेड होंगे। सो अराउंड 10 एक पेपर जो हैं आपको लिटरेचर रिव्यू में प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने चाहिए, जिनमें से 5 डिटेल्ड हो, 5 एक ही स्लाइड के ऊपर एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हो। समझ आई मोहम्मद? अभी आप तो आफ्टर दिस यू शुड गिव द गैप्स
कि ये जो पढ़ा आपने, जो मेथड्स पढ़े, इनके आपकी समझ के मुताबिक इनमें क्या गैप्स थे, एक दो तीन गैप्स दे दें आप एक स्लाइड के ऊपर, गैप एनालिसिस। तो बेस्ड ऑन गैप एनालिसिस शुड बी योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, गैप्स हैं तो मैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा। और जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए तो आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं वहां पे, कि उसी के अंदर से निकलते हैं, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से ही आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं। तो एक एक स्लाइड आप इन पे डालें, एंड देन फॉलोड बाय योर प्रपोज मेथोडोलॉजी, हाउ यू वुड इम्प्लीमेंट इट इन योर अप्रोच। आप कैसे करेंगे? तो proposed methodology of your approach has to be discussed in one slide। और इससे रिलेटेड इसकी डाटा एनालिसिस, लाइक इसका डाटाबेस कहाँ से है, किधर आपके पास अवेलेबल होगा, खुद बनाएंगे या आप कहीं किसी सोर्स से कलेक्ट करोगे। अगर कोई उसके किसी खास पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं, कोई सैंपल साइज ले रहे हैं, तो उसके पीछे क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, और परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स क्या होंगे आपके, किस तरह से आप अपने अपने प्रपोज मेथड को कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके जाओगे। तो ये कुछ चीजें आपने बतानी है, फॉलोड बाय दी टाइमलाइंस, कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन योर रेफरेंसेस। सही है। सो दिस इज एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न। इसी की प्रपोजल डॉक्यूमेंट आपने टेक्स्ट फॉर्म में भी बनानी है, उसमें भी यही हेडिंग्स होंगी सारी जो यहाँ लिखी हुई है। उसका मैंने आपको सैंपल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी का सैंपल जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर यही चीजें आपको नजर आई होंगी, और लोगों ने उस पर दो दो तीन तीन पैराग्राफ, और अगेन उस पर काफी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है कि किस सेक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है। ये मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, लेक्चर्स के अंदर ही। ठीक है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो पिछले लेक्चर जाकर खोल के देख सकते हैं आप कि इसमें किस तरह से बात की हुई है। सो देर इज वन डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड एज proposal document, and one presentation which you have to present in class from next week onwards। बस ठीक। ठीक। बस साढ़े से बात हुई। मतलब नेक्स्ट वीक में आप प्रेजेंट कर सकते हैं ना, नेक्स्ट वीक, बिकॉज आई ट्राई टू फिनिश द कंटेंट टुडे। मे बी थोड़ा सा हम अगली क्लास में भी जाएं, बट ये कि अगला वीक और उससे अगला वीक, 2 वीक जो हमारे पास है एग्जाम से पहले, उसमें आपने अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट को, प्रपोजल प्रेजेंटेशन को देना है। ठीक है। तो उसको तैयार इस लिहाज से कर लें। मैंने आपको सैंपल जो है शेयर किया है, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। इस सैंपल को आपने, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, और अदरवाइज लेक्चर से आप कंटेंट देख सकते हो, और इसके मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपनी बना लें। सो ये तो सैंपल हो गया जी। अगर कोई इसमें सवाल है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। अरे ये टाइम है मतलब कि टाइमलाइन से मुराद होता है कि कैसे थीसिस के कंप्लीशन तक जाओगे आप। हम पहले पहले प्रेजेंटेशन में सब जो विचार शेयर किया। देखें, आप आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं लिटरेचर रिव्यू और करूंगा 1 महीने में, आगे और पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ डाटा कलेक्शन के लिए मुझे 1 महीना चाहिए, फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, फिर मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, उसका कुछ टाइम चाहिए। तो इट इज टाइमलाइन टू रीच टू योर फाइनल डिफेंस। ठीक है। सभी एक तो ये दिस इज तरीका हो गया सर। ये जो पेपर पब्लिश करने हैं सर, तो उस उसकी किस तरीके किस तरह से मतलब अगर मैंने रिसर्च नहीं किया पेपर पब्लिश करने से वो किस तरह। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे पेपर पब्लिश नहीं कर सकते। थीसिस करेंगे तो पेपर पब्लिश होगा। ये जो काम यहाँ पे आप कर रहे हो, ये जो इस स्टेज पे है, इसको आगे अगली स्टेज है इसकी, आप थीसिस करें, थीसिस के अंदर से रिसर्च पेपर निकले। मतलब वो किसी के अंदर होता है अलग चीज नहीं है। लॉजिकल तरीका ये है। अलग चीज जो है वो नहीं कर नहीं सकता बंदा, मुश्किल है उसके लिए। थीसिस किया जाता है तो रिसर्च पेपर लिखा जाता है। सही है। तो कहते हैं ना कि जी अगर आपने साइकिल साइकिल चलाओगे तो फिर मोटरसाइकिल पे आओगे ना, जी फिर गाड़ी पे आओगे। डायरेक्ट गाड़ी पे जाओगे तो आप ज्यादा एक्सीडेंट करोगे, राइट। ठीक है। तो मुश्किल, जो आसान रास्ता है वो स्टेप बाय स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है कि पहले रिसर्च प्रपोजल करें, फिर रिसर्च थीसिस करें, फिर रिसर्च पेपर पे जाओ। तो ये आपकी साइकिल है, साइकिल चलाना सीख ले, फिर आप रिसर्च पेपर पे जाए। रिसर्च पेपर जस्ट लाइक कि डायरेक्ट आपको ट्रक पे बैठा दूंगा जी ट्रक चलाओ, जबकि आपने कभी साइकिल भी ना चलाई हो। ठीक है। शायद कर लोगे लेकिन 4-5 बंदे मारोगे पहले।
ठीक है, लेकिन वो इसलिए वो ठीक नहीं है रास्ता। तो थीसिस के थ्रू जाएं, डायरेक्ट रास्ते पे ना चढ़ें। अच्छा जी, okay. So this is as far as the sample presentation for the proposal is concerned, and this we have exam from 22nd, I think. So we will have at least two more classes. One is on 10th and second is on 17th. तो इन दो क्लासेस में आज हमारा कुछ कंटेंट अगर रह जाता है तो वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 10 और 17 2 वीक्स होंगे जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशंस को खत्म कर सकें। अच्छा जी, so this is as far as the sample presentation is concerned. Now let's move on to the ethical concerns. Ethical concerns पे हम आते हैं, बल्कि let us go towards the commercialization and patenting aspects first, and then we move on to the ethical concerns. So मैं भी आपको पेटेंट्स के ऊपर ले जाऊँ। अच्छा जी, okay. So once we talk of the intellectual property, so it has got its relation with the technology innovation. दुनिया भर के जो मुल्क हैं, दे कीप वर्किंग टुवर्ड्स रिसर्च
The reason of doing research was elaborated in my one of the lecture where I discussed के research करने का मकसद या इस पे गवर्नमेंट्स की फंडिंग का मकसद जो होता है वो ये होता है कि माशरे में जॉब्स क्रिएट हों बिकॉज जब आप रिसर्च करते हैं तो आप चीज़ें डेवलप करते हैं तो इनोवेशंस आती हैं मार्केट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि लोगों के लिए अच्छी उनको लगती हैं उनकी सर्विसेज उनको पसंद आती हैं तो दे इन्वेस्ट ऑन दोज थिंग्स एंड वंस दे इन्वेस्ट तो कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा सेटअप लगाते हैं लोग ज़्यादा हायर करते हैं तो सरकार को ये नज़र आता है कि जी मेरे लोगों को जॉब मिल रही है इसलिए दुनिया भर में जो कम्युनिटीज़ हैं वो रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करते हैं ठीक है सो टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है ये इसको जब मेजर किया जाता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में मेजर करने के और यहाँ पे लाइक इट्स पहली बात तो ये कि जब आपने नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है तो इट रिक्वायर्स साइंटिफिक डिस्कवरीज यू नीड टू गो फॉर समथिंग विच इज डिफरेंट और न्यू देन यू नीड द टैलेंट टू डेवलप इट हर कोई जो है वो इनोवेट चीज नहीं कर सकता तो देर इज अ स्पेसिफिक टैलेंट विच इज रिक्वायर्ड एंड देन अगेन द मार्केट्स वेयर दोज इनोवेटिव थिंग्स वुड बी एम्प्लॉयड या कहीं उनको वहाँ पे आपने फेंकना है या वहाँ पे एम्प्लॉय या डिप्लॉय करना है सो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और इसी मकसद के तहत जो है वो कंट्रीज बहुत सारे दुनिया में काम करते हैं सो अगर इसमें हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट्स अ लीडर टुवर्ड्स द आईपी इंडस्ट्री दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा आईपीज इस वक्त किए जाते हैं वो उसमें यूएसए लीडिंग रोल के ऊपर है और ये एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है जो कि ये मेजर कर रही है कि दे आर टॉपिंग दी पोजीशन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा इफेक्टिव रिसर्च है यूएसए की this particular graph shows quality of research output in terms of citations per articles and the H index. H index means how many times that paper or that work has been cited by different people. So you see there are many countries in this list, but the इसमें जो H index है वो आपके y एक्सिस के ऊपर है और इसमें जो साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो अगर आप यूएसए को प्लेस करते हैं तो यूएसए की जो इस वक्त स्टैंडिंग है अराउंड 3500 एच इंडेक्स यानी 3500 पेपर्स तकरीबन 3500 दफा साइट हुए हैं दिस इज हाउ ये किसी एक साल का डाटा है और पर डॉक्यूमेंट साइटेशन जो है वो अराउंड 35 साइटेशंस के लिहाज से है सो इसमें बाकी मुल्क भी हैं जो नज़र आ रहे हैं बट ये कि बड़ा प्रोमिनेंट पोजीशन पे यूएसए है कि उनकी रिसर्च की जो आउटपुट है तो पॉइंट टू स्टार्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट पहला काम क्या होता है कि रिसर्च पेपर्स लिखे जाए दैट इज हाउ थिंग्स मूव सो यूएसए इस पे बहुत आगे है और इसमें हमने एक दफा बात की थी कि जितना जल्दी ये स्टेप आता है दुनिया में द अर्लियर यू स्टार्ट राइटिंग द अर्लियर दैट इनोवेटिव माइंड्स दैट आर एक्टिवेटेड ठीक है सो जैसा इसराइल है इसराइल जो है वो अर्लियर टाइम पीरियड के अंदर बच्चों को दे से कि जल्दी स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर पढ़ना और लिखना शुरू कर दें सो इस तरीके से दुनिया भर के जो मुल्क हैं वो अपना 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 रोल प्ले कर रहे हैं यूएसए इज क्वाइट अहेड इन दिस रिगार्ड और नाउ दिस फिगर एक और डाटा शो करता है दिस शोज के हाउ अ ग्रेजुएट एजुकेशन इज गिविंग देम स्ट्रक्चरल एडवांटेज because their people they stay within their country and the other countries also migrate to US. So higher टैलेंट की बात हमने की थी ना एक तो ये कि आप काम करें लेकिन ये कि काम इनोवेटिव माइंड जो आपका सस्टेन भी करें सस्टेनेबिलिटी हो तो इस ग्राफ पे अगर आप देखते हो तो यूएसए जो है उसके ग्रेजुएट जितने दुनिया में यानी करते हैं एक साल के अंदर वो भी वहीं रहते हैं एंड प्लस दुनिया भर के जो अच्छे टैलेंट के लोग हैं वो भी यूएसए ट्रांसफर होते हैं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि चाइना की अच्छा टैलेंट भी मूव करता है टू यूएसए इंडियन टैलेंट भी मूव करता है टू यूएसए इवन यूके का टैलेंट भी मूव करता है टू यूएसए यूरोपियन यूनियन से भी जितने कंट्रीज उनके लोग भी यूएसए ट्रैवल करते हैं बिकॉज जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको सपोर्ट करता है तो इसलिए अगर आप उसे फॉलो करो तो अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएशन स्टेज के दरमियान there are a lot of people which move towards USA. So the talent is retained within that country.
So analysis of the careers of around 46,000 researchers working across 44 critical technologies, depicting the brain drain and gains across countries. So those people are moving to America and they are contributing with their talent to their economy. Right? So this graph is one such depiction. देन अगेन अगर हम एआई की बात करें आजकल के लिहाज से तो अगेन जो इस वक्त यूएसए है इट इज लीडिंग विद द टॉप एआई कंपनीज अराउंड 35 कंपनीज जो हैं वो इस वक्त यूएसए और उसके बाद कैलिफोर्निया में है फिर उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर हैं टेक्सास के अंदर है सो दीज आर दी कंपनीज विच आर इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एआई के अंदर भी जो इस वक्त टॉप नॉच परफॉर्मेंस है वो यूएसए की ही है अब लेटेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर आप चैट जीपीटी से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो जन एआई के टूल्स हैं अगर उनको आप देखते हो लिस्ट को तो उसमें से टॉप 10 के अंदर अराउंड 6 कंपनीज जो है वो यूएसए की एंड चैट जीपीटी जो है जो आपका प्रोडक्ट है दिस इज टॉपिंग ऑल अदर एलएलएम्स ग्रॉक भी यूएसए का है क्लॉड भी यूएसए का है डीप सीक चाइना का भी अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है बट वो भी 5वें 6ठे नंबर के ऊपर है एज फार एज दी वेरियस ग्रेडिंग्स आर कंसर्न ठीक है सो मैंने शायद एक लास्ट क्लास में आपको दिखाया भी था कि एलएलएम मॉडल्स जो है उनको 57 क्राइटेरिया के ऊपर ग्रेड किया जाता है तो एक कैटेगरी के अंदर मोस्ट ऑफ द यूएसए कंपनीज आर लाइन सो दे हैव अब ये वो एरिया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है इसमें सारे बराबर है इसमें ये इसमें कोई पुरानी नॉलेज नहीं चाहिए इसमें पाकिस्तानी अमेरिकन इंडियन सब बराबर है सो अगर कोई बंदा इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट मींस दे आर रियली डूइंग गुड okay or now this particular diagram shows again for the AI development and competitiveness तो इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें जो कलर कोडिंग हुई भी है यूएसए ग्रीन कलर में शो हो रहा है चाइना ब्लैक कलर में शो हो रहा है सिंगापुर 3 बड़े कंट्री शो किए हुए टॉप 10 के अंदर जो बाकी कंट्रीज इनके अलावा है उनमें एक यूके है कनाडा है साउथ कोरिया है इजराइल है जर्मनी है स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड है ठीक है और इसमें ये शो कर रहा है कि किस तरीके से दे आर परफॉर्मिंग रैंकिंग में किस तरह परफॉर्म कर रहा है लाइक टैलेंट के अंदर नंबर 1 के ऊपर इस वक्त यूएसए है इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आपका जो चाइना है वो ज़्यादा सपोर्टिव है मतलब टॉप 2 3 के अंदर आता है बट ये कि अमेरिका उसमें थोड़ा सा उनकी चूंकि कंट्री की नेचर ऐसी है कि वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़े से आई वुड से कि इतने परफेक्ट नहीं है बट दे आर जो मैक्सिमम लूज अगेन पोजीशन उनकी 30 तक जाती है बट स्टिल दे आर बेटर ऑफ और फिर आगे अगर मूव करें तो रिसर्च डोमेन के अंदर दे आर टॉपिंग डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज में दे आर अगेन इन लीडिंग टॉप 10 के अंदर है चाइना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है चाइना में जो स्केल इंटेंसिटी है शायद वो कम है जो इस ग्राफ के अंदर शो हो रहा है सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यूएसए इज टॉपिंग ओवरऑल इन द एआई डेवलपमेंट एंड competitiveness एज अ होल ग्रेड अगर ये सारे फैक्टर्स इन करें जिसमें टैलेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च है डेवलपमेंट है गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज हैं कमर्शलाइजेशन है स्केलिंग है इंटेंसिटी है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना एक काम के करने के लिए तो यूएसए इज परफॉर्मिंग ऑन ऑल स्केल्स मच बेटर देन एनी अदर कंट्री ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो शो हो रहे हैं जिनमें यूएसए इज नंबर 1 एंड नंबर आपका जो बाकी कंट्रीज जो इस वक्त 2 और टॉप पे शो हो रहे हैं वो चाइना सिंगापुर और कुछ और नीचे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि दे आर ऑल सो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ranks the USA first in market sophistication and above China in all metrics related to national innovation because of their various factors. China बहुत इन्वेस्ट कर रहा है but still they are doing better. यहाँ पे फिनोमेना ये शो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक बड़ा सर्किटस पाथ लेती हैं टू इम्प्रूव आहिस्ता 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 आगे बढ़ती हैं लाइक दिस इज शोइंग द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मूवमेंट अलोंग द टाइम लाइन्स इन्वेंशन एंड देन डिस्कवरी के दरमियान एक रूट होता है लाइक आप अगर इसमें देखते हैं कि 2000 के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर की इन्वेंशन के कुछ स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए गए जिनके अगेन कुछ बेसलाइंस पुराने सालों के अंदर थी फिर 2009 में ये चीज़ इम्प्रूव की तो अगर इसको हम शुरू से देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ ये चीज़ शो कर रहा है कि चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है ग्रेजुअली आगे जाती है और जनरली स्पीकिंग एक प्रोडक्ट जो कि रिसर्च फेज में होती है उसको
कमर्शियल फेज में आने में 30 एक साल लग जाते हैं, 30 years लगते हैं टू गेट इट टू अ परफेक्ट स्टेज। This slide is showing the rate at which a country adopts to new technology, showing the as a predictor of standards of living. So इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे adoption या adoption lag relative to the USA है, कि कितने साल वो पीछे हैं यूएसए से, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हो। और राइट साइड पे इनकम पर कैपिटा है रिलेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री या कहेंगे टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन में इतने इतने साल अमेरिका से पीछे है। ठीक है, लाइक इराक जो है वो 80 साल पीछे है देखा जाए तो, और इस तरह से बाकी कंट्रीज भी हैं। अगेन इट शोज दी मार्केट कैप्चर या कहें कि हायर रेट ऑफ एडॉप्शन या हायर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन यूएसए, दे आर गोइंग फास्ट इन कंपैरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। ओके, सो अगर ये चीज थोड़ी सी क्लियर है तो इसके बाद फिर हम चलते हैं अभी जाके इसी कि अब इसका ये ऐसा है क्यों, हुआ क्यों है, इसका ताल्लुक जो है वो इनोवे आईपी से कैसे है। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे। Let me share the presentation with others as well. अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन जब आप करते हैं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन का जो ताल्लुक है वो फिर उसके सेफ कस्टडी के साथ भी है, कि वो चीज़ जो है वो वाइट इकोनॉमी में रहे और लोग उसको सपोर्ट करें। सो अमेरिका में जो इनोवेशन है उसको उसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आईपीज या जैसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इट गिव्स satisfactory rights to the maker as well as to the buyer। दोनों को पता होता है कि जी मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो ठीक बेच रहा हूँ और जो चीज खरीद रहा हूँ वो ठीक खरीद रहा हूँ। सो जो इस वक्त यूएसए की इंडस्ट्री है, बिकॉज दे आर डूइंग वेल टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, सो उस लिहाज से उनके लोग भी फायदे में, लाइक दिस स्टडी या इस पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एट स्टेट्स के जो लोग आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, दे अर्न अराउंड 50% मोर देन व्हाट दी पीपल इन नॉन नॉन आईपी इंडस्ट्री दे वर्क। लाइक आप ये लैपटॉप बना रहे हैं तो ये लैपटॉप जो है वो ऐसी जगहों पे भी बन रहे हैं जो कि आईपी कहें कि इनके आईपीज नहीं हुए होते। वो मार्केट जो है ऐसी भी है, और ऐसी मार्केट भी है जहाँ पे हर चीज़ जो बन रही है वो प्रॉपरली कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बन रही है। सो अगर आईपी से जो अमेरिका की वर्थ देखी जाए बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सो दे अर्न अराउंड 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स फ्रॉम द आईपी। 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान बजट इज 50 बिलियन डॉलर्स। एक साल का बजट हमारा 50 बिलियन डॉलर है, बट it's a huge amount which they earn from their that product which is being safeguarded for its reproduction anywhere in the world. They give this satisfaction to their makers. Or so intellectual property creates and supports high paying jobs. Uh, this also drives economic growth and competitiveness because you are getting more payment through the paying through the selling of those things. And then again this gives the safety reliability to the purchaser जो चीज खरीद रहा है, because products are supposed to be authentic and of good quality so that consumers can buy with all their fears gone। और जब आपको पता होगा जी मेरी चीज जो है वो उस पर मुझे प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, तो फिर आप नई प्रोडक्ट्स बनाने में भी ज्यादा ज्यादा शौक से वो काम करते हैं। सो
there are certain benefits of going into the intellectual property. So ये तो as far as the मार्केट लीडर और उसकी लीडिंग की वजह से जो उसको फायदे हो रहे हैं उसके बारे में कुछ मोटिवेशन स्लाइड्स थी. नाउ आई गो बैक एंड डिस्कस द आईपी इटसेल्फ. आईपी जैसे क्या है, जैसे मैंने कहा कि स्टैंड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो अगर आपने एक चीज बनाई है तो कोई उसे चोरी ना करे या आपकी मर्जी के बगैर उसको उस आईडी को कॉपी ना करे. दिस इज व्हाट वी कॉल कि जी चीज आपने सेफ मार्जिन में रखी हुई है. So it in fact is a intangible property. Intangible means कि ये आपका दिमागी इख्तरा है, आपके पास है, तो आपने उसको it is a property which you should. ये कोई फिजिकल फॉर्म में शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कि आपकी प्रॉपर्टी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है which arises from the creation of mind, and it has no physical form. So it is owned, IP is owned, and it can generate income. Now there are various types of intellectual properties. All of these things written here, they are intellectual properties. Copyrights, patents दो किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं डिजाइन पेटेंट्स और एक को हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट्स. सो यूटिलिटी पेटेंट्स जो है ये क्या होते हैं और डिजाइन पेटेंट्स क्या होते हैं इनको हम आगे देखते हैं. बट दे आर आईपीज. सिर्फ आईपी का मतलब पेटेंट नहीं होता. पेटेंट आर पार्ट ऑफ आईपीज, बट आईपीज में ये सारी चीजें शामिल है. कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, आईसीज लोग डिजाइन करते हैं, उनके लेआउट डिजाइंस. प्लांट लोग नए डेवलप करते हैं, उनके ब्रीडर्स राइट्स. एंड देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन को वन बाय वन देखते हैं कि क्या चीजें हैं. सो ओके, बिफोर वी गो ऑन टू कि ये आईपीज इनफैक्ट है क्या है, इनका एक सर्कल है जो कि हमें पता होना चाहिए कमर्शलाइजेशन में, जिसको हम यूज करते हैं. जब लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर के बाद तो पहली चीज होती है वो फंडिंग के लिए जाते हैं. फंडिंग में आप चीज़ों को डेवलप करना चाह रहे होते हैं बेस्ड ऑन योर आइडियाज, जिस पे आपने कुछ इनिशियल रिसर्च की है. आप जब डेवलपमेंट में जाएंगे तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट. डिजाइन एंड डेवलपमेंट का मकसद क्या है कि आप कोई प्रोटोटाइप बनाओगे. ठीक है, आपने एक टेलीविजन बनाया है, उसका आइडिया दिया है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी से मैं एक टेलीविजन बनाना चाह रहा हूँ. तो उसको आप प्रोटोटाइप करोगे, उसका लैब प्रोडक्ट बनाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के बनाओगे, किसी यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि डैनी आपके साथ ऑन बोर्ड होगी और आप वो काम करके प्रोटोटाइप बना लेंगे. प्रोटोटाइप या लैब प्रोडक्ट जो होता है वो एज सच स्टैंडर्ड सारे फॉलो नहीं कर रहा होता. सो दुनिया भर में इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि किस तरह से आपने उसको इस काबिल बनाना है कि वो एक यूजर के हाथ में जाए तो माल फंक्शन ना करे, खराब ना हो, टाइमली चलता रहे, एक सस्टेनेबिलिटी दे आपको. इसलिए द सेकंड स्टेज ऑफ लैब प्रोटोटाइप इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन विच यू गो फॉर विद द हेल्प ऑफ एनी रिलेटेड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री जो है वो एक डिफेंस इंडस्ट्री भी हो सकती है, तो वो आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ें बनाने के लिए ऑप्शंस या तरीक़ेकार समझाती है. तो स्टैंडर्ड्स की एक दुनिया अलग है दुनिया भर में, और देर आर इनफैक्ट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं दुनिया भर के. सो जो लैब की जो प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में जाने के लिए पहले इंडस्ट्री के एक पैमाने से गुजरती है और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे या मिलिट्री स्टैंडर्ड पे आ जाती है, एविएशन स्टैंडर्ड पे आ जाती है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स उस मार्केट के लिए डिफाइन किए गए. सो थर्ड स्टेज इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. जब इंडस्ट्रियल डिजाइन बना लेते हैं तो अब आप कंफर्म है कि जी मेरी चीज जो है वर्केबल है और अच्छी है, देन यू गो फॉर द आईपी. ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आप कोई यूटिलिटी डेवलप कर रहे हैं. सो आईपी से मुराद यहाँ पे है डिजाइन एंड यूटिलिटी पेटेंट्स. इस जगह पे कमर्शलाइजेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. जब अपनी डिजाइन को आप पेटेंट कर लेते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेज इज लाइसेंसिंग विद द इंडस्ट्री. रीजन के एकेडमिया जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को बड़ी क्वांटिटी में नहीं बना सकते. आप एक प्रोडक्ट बना के मार्केट स्टैंडर्ड पे स्टैब्लिश कर लेते हैं एंड देन यू गो इन डील विद द इंडस्ट्री के ओके जी मैं शीजान के साथ मैं जो है वो किसी प्रॉपर इंडस्ट्री, कोई भी नाम आप ले लें जिसमें आप काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है ना मैं अब इसका लाइसेंस करूंगा. और लाइसेंस में देयर आर टू थिंग्स. यू गेट इनटू दैट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जिसमें आप अपने आईपी को सेल करते हैं. आप कहते हैं जी मैं आपसे ये आप आईपी आप रखें एंड स्टार्ट मेकिंग दिस प्रोडक्ट इन दी बल्क क्वांटिटी एंड पे मी अप फ्रंट फी
से आपकी मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की 1 अरब रुपया है, तो आप उनसे 1 अरब रुपया अप फ्रंट ले लेंगे कि मुझे आप 1 अरब रुपया दे दें, उसके बाद आप इसको खुद बेचें और हर प्रोडक्ट पे, हर सिंगल प्रोडक्ट पे मुझे एक रॉयल्टी पे करें. सो दे स्टार्ट डूइंग इट कमर्शियली एंड दे स्टार्ट गिविंग यू रॉयल्टी विद द अपफ्रंट फी. अपफ्रंट फी आपकी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है जो कि आप समझते हैं कि जी मैंने जो डेवलप की है इससे इनको इतना फायदा नहीं लॉन्गर रन होने वाला है इस प्रोडक्ट की कीमत के अगेंस्ट. सो अपफ्रंट फी जो इट्स नेगोशिएबल होती है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं. आपकी एक प्रोडक्ट है मार्केट में, से पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है और वो $40,000 की है. ठीक है. आपने पाकिस्तान में उसको डेवलप किया $5,000 के अंदर विद योर ओन रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल्स. अब वो एक्चुअल प्राइस तो उसकी $40,000 है, बट आपने 5,000 में डेवलप कर लिया है. आपका आईपी अब आप डेवलप कर रहे हैं उसको. ठीक है. और आप ये अपफ्रंट फी में इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि जी मुझे आप $40,000 एक दफा ही पे कर दें. उसके बाद आप ये $40,000 बेचते रहेंगे. हो सकता है 50, 500, 5,000 प्रोडक्ट बेचें, हर एक पे आप $40,000 कमाएंगे. ठीक है. मुझे उसमें सिर्फ रॉयल्टी चाहिए होगी. तो वो तो 500 प्रोडक्ट के अगेंस्ट 500 प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय $40,000 कमाएगा ना. आप उससे उस प्रोडक्ट की एक अपफ्रंट फी ले लेंगे स्टार्ट पे और फिर रॉयल्टी में 5 से 7% की रॉयल्टी आप उससे लेंगे कि ओके जी आप हर प्रोडक्ट जो आप बेचोगे वो 5 से 7% डिपेंडिंग अपॉन योर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट उसकी रॉयल्टी आपको पे करें. तो ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को ही जा रहा होगा या इंडस्ट्री को ही जा रहा होगा, बट आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दैट इंडस्ट्री. सो ये एक साइकिल है जो कि प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन का चलता है. ठीक है. आई होप दिस मेक सेंस. समझ आया ये. ओके. सो इस साइकिल के लिए क्या चीज है कि यू नीड टू हैव दी पेटेंट्स. ये अब एक खास हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, बट मैं अब ओवरऑल आईपी के बारे में बात करता हूँ कि आईपी में क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले हम आते हैं पेटेंट्स के ऊपर. सो पेटेंट्स जो हैं दे प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. They give exclusive rights to produce, use, and sell any invention for a certain period of time. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया इंजन डेवलप किया, मैंने कोई एक नई मेडिसिन डेवलप की, मैं उसको पेटेंट करा सकता हूँ, उसके प्रोसेस को पेटेंट करा सकता हूँ. वी कॉल इट दी यूटिलिटी पेटेंट. यूटिलिटी पेटेंट है कि काम कैसे किया जाए, उस काम के करने का एक तरीका कार है जो कि मैंने इनोवेट किया है. सो दैट वुड बी थिंग लाइक ये कुछ एग्जाम्पल्स. यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है, मैं अगले पे आ गया हूँ ट्रेडमार्क पे. तो मैं एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दी है कि न्यू टाइप ऑफ इंजन और फार्मास्यूटिकल ड्रग टाइप, ये आपका कोई काम है जिसको आप पेटेंट करना चाह रहे हैं. तो दिस इज दी यूटिलिटी पेटेंट. ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? दे आर अगेन आईपीज. ट्रेडमार्क्स भी आईपीज होते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग आईपी है. लेकिन ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रांड नेम, लोगोज, सिंबल्स, स्लोगन्स एंड दे डिस्टिंग्विश द सर्विसेज एंड गुड्स. और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए ये आईपी किए जाते हैं. लाइक नाइकी जो है उसका एक सिंबल है. ठीक है. इट्स अ स्पोर्ट्स ब्रांड. कोका कोला का एक सिंबल है. तो वेन एवर एनी कंपनी इज गोइंग टू यूज दी सिंबल्स, दे आर गोइंग टू पे द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जिसने ये काम किया था. राइट. सो अगर आप कोका कोला पाकिस्तान में बेचते हैं, यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड है जो कि बॉटल कर रहा है कोका कोला को, तो वो एक खास अमाउंट ऑफ फी पे करेगा एक्चुअल इन्वेंटर्स को जिन्होंने इसको, इस ट्रेडमार्क को पेटेंट किया हो. अब से वो पेटेंट अगर यूएसए में किया हुआ है और यूएसए आपको ये एक्सेस देता है, तो वो आपसे एक फीस लेगा उसके अगेंस्ट, तो आप उसको वो ट्रांसफर करेंगे. वो तो 6 ट्रिलियन डॉलर जो है ना, वो दुनिया भर से पैसा आ रहा है. उसमें बहुत सारी चीजें आईपी के बेदाशा चीजें, उनमें लोगोस भी हैं, उनमें ट्रेडमार्क्स भी हैं, उनमें यूटिलिटी पेटेंट्स भी हैं, उनमें डिजाइन पेटेंट्स भी हैं. वो सारे पेटेंट्स के अगेंस्ट एक खास अमाउंट ऑफ फी दे चार्ज फ्रॉम दी लोकल मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है. सो दिस इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन आईपी. दिस इज ये किन के लिए किया जाता है? ब्रांड नेम्स के लिए, लोगोस के लिए, सिंबल्स के लिए. तो आपके लोकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपने लोकल अपने जो उनके लोगोस हैं, तो वो ट्रेडमार्क या कहें कि आईपी